A very good morning, my dear student. My dear student, as you know, that at present issue of debenture chapter is going on in accountancy, and today we will discuss the new topic, my dear student. The, the new topic name is interest on debentures. Yes, my dear student. Interest on debentures. This is a very easy topic, my dear student. Suppose it is written in the question this 10% debenture. Suppose 10% debenture it is written. It means 10% is indicating the interest. तो 10% इज द इंटरेस्ट और हर डिवेंचर से पहले पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ 10% डिवेंचर 8% डिवेंचर 7% डिवेंचर तो परसेंटेज जो बताती है वो हमें इंटरेस्ट के बारे में बताती है तो डेफिनेटली इफ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट बिल्कुल लाइक दिस इफ वी आर इशूइंग द डिवेंचर मार्केट तो मार्केट में डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो क्यों बिकॉज वी वांट टू टेक द लोन फ्रॉम द पीपल लोगों से लेना चाहते हैं एंड उसके बदले में क्या देंगे हम डेफिनेटली वी आर इशूइंग द डिवेंचर्स so definitely if we are issuing the debentures and we are taking the credit amount so definitely after some time we have to pay the interest on debentures so now first of all we will learn the what is the journal entries on interest on debentures so these are the very simple journal entries on interest on debentures first of all we have to interest due my dear student interest due we know very well about it that interest on debenture is expenses so expenses are debit so that's why they are saying debenture interest or interest on debentures account debit या तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट का यूज करें अदरवाइज वी कैन से द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस दैट वाई इट्स डेबिट एंड सेकंड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किसको करा डिवेंचर होल्डर बिकॉज डिवेंचर होल्डर इज अ liability and liability is a credit but in the next journal entries when we will pay the amount to the debenture holder then अब हम क्या कहेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट वी कैन से इट इज अ रिसीवर डिवेंचर होल्डर आर द रिसीवर्स और रिसीवर डेबिट होते हैं अदरवाइज already we have seen that in the previous entry it is a liability and now the liability is decreasing so that's why we are debiting interest on debenture holder account debit and what goes out definitely bank balance goes out if you pay the interest on debenture तो क्या जाएगा हमारे पास से पैसा जाएगा तो what goes out bank balance goes out so that's why we have credited to bank account my dear student now my dear student number third and the last entry we will learn that interest on debenture is expenses so definitely every expenses we have to transfer in the statement of profit and loss account तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट है तो डेबिट का आइटम को ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा तो इन द लास्ट एंट्री हम देख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हमने क्रेडिट करा बट वेयर वी आर ट्रांसफरिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने डेबिट कर दिया स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स माय डियर स्टूडेंट तो ये तीन जनरल एंट्री है जो कि हमें सीखनी है और अपने क्वेश्चन में बनानी है माय डियर स्टूडेंट नाउ I am taking one question. This is a question, my dear student. It is written Time Sports Limited issued 15,000 10% debenture. 10% means 10% is indicating the interest. 10% is the interest. So 15,000 10% debenture we are issuing of rupees 100 each. My dear student, we are issuing 15,000 debenture. रेट है 100 रुपये अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 लाख रुपीज़ आते हैं 15 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स वी आर इशूइंग और 15 लाख रुपए पे हमें क्या देखना है इंटरेस्ट इज अ 10% तो 15 लाख का 10% निकालेंगे तो डेफिनेटली एक साल का इंटरेस्ट बैठता है माय डियर स्टूडेंट 1,50,000 रुपीज़ और अगर हम हाफ ईयरली पेड करेंगे तो उसका आधा इंटरेस्ट होता है 75,000 रुपीज़ बिकॉज हाफ ईयरली वी हैव टू पे द 75,000 ईयरली वी हैव टू पे द 1,50,000 माय डियर स्टूडेंट तो यहीं पर ही सब चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी तो यहाँ पर हमने देख लिया कि टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर और रुपीज़ 100 ईच तो 15 लाख के डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं 10% उस पर इंटरेस्ट है 15 लाख का 10% होता है 1,50,000 हाफ ईयरली 75,000 आगे कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2023 द इश्यूड वॉज फुली सब्सक्राइब्ड जो हमने इशू करे लोगों ने पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया एक्सेप्ट कर लिए एंड फुली पेड और सारा पैसा भी उन्होंने हमें दिया है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इशू इस इशू के टर्म पे इंटरेस्ट ड्यू हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू होता है ठीक है हाफ ईयरली बेसिस आगे कहते हैं पास जनरल एंट्रीज
for interest on debentures for the year ended 31st March 2024 my dear student। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, हाफ ईयरली एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट इंटरेस्ट पेड करेंगे सितंबर में, बिकॉज अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है ईयर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर जब हमारे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो फर्स्ट इंटरेस्ट को हम पेड करेंगे। लेकिन पेड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्यू। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट इज 75,000 हाफ ईयरली। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट 75,000। तो दीज टू एंट्री वी विल मेक, ठीक है, in the between of the year, and after when we will come in the 2024 31st March, तो फिर से हम एंट्री बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर बनाएंगे डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट अगेन 75,000, और फिर हम पेड करेंगे बेटा ऐसे। तो यहाँ पर पेड की एंट्री यहाँ पर हमें बनानी है। तो पेड करेंगे तो क्या बनेगी एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड माय डियर स्टूडेंट एट द लास्ट ऑन द 31st मार्च, बिल्कुल लास्ट में क्या होगा कि हम यहाँ कहते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000। तो टोटल इंटरेस्ट वी हैव टू ट्रांसफर इन द statement of profit and loss account my dear student। so I think this is a very simple topic my dear student। I hope you can do the some assignment question my dear student। so thank you very much and God bless you my dear student।